কথা বলতো, আজ তাদের আশীর্বাদ নিয়েই তারা ভোটে লড়ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ভোটারকে বলবো, লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের মন্ত্র ছিল চুপচাপ কমল ছাপ, চুপচাপ কমল ছাপ। এই মন্ত্র দারুণ কাজ দিয়েছিল। আপনার একটা ভোটের শক্তি কাশ্মীর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত দেখা গেছে। এবার আপনাদের জোরে ছাপ, টিএমসি সাপ মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এবার সময়ের পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। পিসি আর ভাইপোকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরাতে আপনারা পুরোপুরি তৈরি আছেন। বাংলায় আমাদের লড়াই টিএমসির সঙ্গে, কিন্তু তার সঙ্গেই এদের লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের থেকেও সাবধানে থাকতে হবে। খেলার মধ্যে ম্যাচ ফিক্সিং হয়ে থাকে, কিন্তু এবার লেফট, কংগ্রেস আর তৃণমূল মিলে রাজনীতিতে পর্দার আড়ালে ম্যাচ ফিক্সিং করছে। দিল্লিতে লেফট, কংগ্রেস আর তৃণমূল এরা তিনজনে একসঙ্গে বন্ধ ঘরে দেখা করে, গল্প করে, একসঙ্গে বসে রণনীতি ঠিক করে। কেরলে কংগ্রেস আর লেফট মিলে ডিল করে রেখেছে, 5 বছর তুমি লুট করো, 5 বছর আমরা লুট করব। কিন্তু বাংলাতে লেফট আর তৃণমূল একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করার শুধু নাটক করে চলে। সেই জন্য লেফট আর কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার মানে হলো এই পর্দার আড়ালে যে খেলা চলছে সেই খেলায় অংশ নেওয়া। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন চাকরি, চাকরি, নারী সুরক্ষা, নারী সুরক্ষা, কৃষক সুরক্ষা, কৃষক সুরক্ষা, বিকাশ, বিকাশ, সুশাসন, সুশাসন, সোনার বাংলা, সোনার বাংলা, বিজেপি, 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 বিজেপি। এই বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদের সবাইকে আরো একবার আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন শ্যামপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রার্থী সম্মানীয় তনুশ্রী চক্রবর্তী। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বাগনান বিধানসভার প্রার্থী সম্মানীয় অনুপম মল্লিক মহাশয়। আমি প্রত্যুষদাকে 2-4 কথা বলার জন্য মঞ্চের সামনে আহ্বান করব। আজ এই ঐতিহাসিক সভা, এই হাওড়া গ্রামীণ জেলার ঐতিহাসিক সভার মধ্যে আগত লক্ষাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের আমি দুহাত তুলে অভিনন্দন করছি, দুহাত তুলে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ এই মোদিজির জনসভায় যে জনপ্লাবন হয়েছে, এই জনপ্লাবন প্রমাণিত করছে যে আজ হাওড়া গ্রামীণ জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতা আসছে। আজ মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যেই মোদিজি উপস্থিত হবেন।
ডেকে নেব তনুশ্রী চক্রবর্তী, শ্যামপুর বিধানসভার প্রার্থী। নমস্কার। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এই জনপ্লাবন প্রমাণ করে দিচ্ছে এটা শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্লাবন নয়, এটা টিএমসির বিদায় মিছিল। আজকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত চলে এসছে। আজকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা সবাই যারা উপস্থিত রয়েছি, আমার এবং আপনারা সবাই একসঙ্গে সামিল হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত। আমরা আজকে আসুন শপথ নিই, আমরা গড়ব সোনার বাংলা, আমরা আনবো আসল পরিবর্তন। নমস্কার। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পাপিয়া অধিকারী, আপনাকে কিছু বলার জন্য ডেকে নেব। পাপিয়াদি। নমস্কার সবাইকে, অনেক অনেক অভিনন্দন, অনেক অনেক শুভেচ্ছা, বুক ভরা আদর আপনাদের সবাইকে। আমাদের মধ্যে এসে গেছে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী। উনি এসে আপনাদের বলবে কেমন করে সোনার বাংলা গড়া যায়, কেমন করে সোনার উলুবেড়িয়া গড়া যায়, কেমন করে দুষ্টের পতন হবে, কেমন করে অত্যাচারের বিনাশ হবে। বলুন জয় মা জগদ্ধাত্রী, বিনাশ করে অত্যাচারী, অত্যাচারের বিনাশ হোক। আমি একটা সামান্য সৈনিক মাত্র, আপনারাই আমাদের সেনাপতি। আপনাদের কথা অনুযায়ী, আপনাদের দেখানো পথ অনুযায়ী আমি চলবো। আমাকে আপনারা আশীর্বাদ দেবেন। আগামী শুধু 5 বছর নয়, পর পর 5 বছর ধরে আমি যেন সোনার বাংলা গড়ে থাকতে পারি। সোনার বাংলা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা। ধন্যবাদ পাপিয়াদিকে। বাগনান বিধানসভার প্রার্থী প্রাক্তন সভাপতি অনুপম মল্লিক আপনাদের সামনে 2-4 কথা বক্তব্য রাখবেন। পবিত্র ষষ্ঠীর এই পুণ্য লগ্নে ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে জয় শ্রীরাম, প্রণাম জানাচ্ছি। জয় জয় শ্রীরাম, পরমহংস জয় জয় শ্রীরাম। বিবেকানন্দ, জোরে বলতে হবে, নবান্ন থেকে দিদিকে তাড়াতে হবে। শ্রী তাই জয় শ্রীরাম, বাবা লোকনাথ, জয় জয় শ্রীরাম। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, বন্ধুগণ, মা আজ এই হাওড়া গ্রামীণ জেলার অসংখ্য এক ঐতিহাসিক সমাবেশে ভক্তি। বক্তব্য রাখবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে আজ আমি ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি। আমরা তার বক্তব্য শুনব, কিন্তু তার আগে এই তৃণমূল সরকারের সন্ত্রাস আর এই তৃণমূল সরকারের কাটমানির সরকার, এই তৃণমূল সরকারের রাহাজানি সরকার, মহিলাদের সম্ভ্রম না রাখার সরকার, চাল চুরির সরকার, কাটমানির সরকার, টেট পরীক্ষা দিতে দেয়নি তার সরকার। এই সরকারকে আগামী 6 এপ্রিল যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে বিদায় জানাতে হবে। আর বিদায় জানিয়ে আগামী 2রা মে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন সোনার বাংলা গড়ার সংকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিয়েছেন, সেই স্বপ্নকে সাকার করতে হবে। তার জন্যে আমরা আজকে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের ভোট নিজে দিতে যাবেন, কোনো ভয় নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী চতুর্দিকে পিঠে থাকবে, আপনারা শুধু আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। সকলকে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সব বাধা ধন্যবাদ অনুপমদাকে। আমি ডেকে নেব সুমিত রঞ্জন খাড়া, উদয়নারায়ণপুর বিধানসভার প্রার্থী। কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। পরিবর্তন আসন্ন, শুধু সময়ের অপেক্ষা। জনপ্লাবন হয়ে গেছে এখানে।
সবাইকে আমার প্রণাম নমস্কার এবং माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वागतम। प्रधानमंत्री जी स्वागतम। प्रधानमंत्री जी स्वागतम। प्रधानमंत्री जी स्वागतम। प्रधानमंत्री जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি। আমরা হাওড়া গ্রামীণ জেলার পক্ষ থেকে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। মাঠে সমবেত সবাইকে দুহাত তুলে হাততালির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীজি স্বাগত করবেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তাকে উত্তরী পরিয়ে স্বাগত করবেন হাওড়া গ্রামীণ ভারতীয় জনতা পার্টির কনভেনর শ্রীযুক্ত সুজয় চক্রবর্তী মহাশয়। আমরা এই সন্ধিক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত করছেন এই জেলার কনভেনর শ্রী সুজয় চক্রবর্তী মহাশয়। আমি জেলার কনভেনর মাননীয় সুজয় চক্রবর্তীকে দু এক কথা সংক্ষেপে বলার জন্য আহ্বান করছি। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद। সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। এই ঐতিহাসিক উলবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে আজ ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে গেল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রী, সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই ভূমিতে পদার্পণ করেছে। আপনারা হাওড়া গ্রামীণ জেলার সমস্ত বিজেপির কার্যকর্তারা খুবই ভাগ্যবান। আর আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে সকলকে আমার একটি নিবেদন যে হাওড়া গ্রামীণ জেলার একটি বিধানসভা আছে, সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাবার জন্য আমরা আমাদের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়ে যাব এবং একটা বিধানসভা জয়লাভ করব। এটুকুই বলার, সকলকে জাতীয়তাবাদী গৌরী অভিনন্দন জানাই। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি। যার কথার জন্য শোনার জন্য আপনারা এই চড়া রোদকে উপেক্ষা করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেই সন্ধিক্ষণে আমরা পৌঁছেছি। আমরা নিবেদন করব আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। মোদীজি স্বাগতম। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। नेताजी के क्रांति क्षेत्र
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के कर्म क्षेत्र श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की परंपरा को समृद्ध करने वाले बेलूर मठ की इस पावन धरा को मैं आज आदर पूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। हावड़ा की ये धरती पश्चिम बंगाल के समृद्ध अतीत का प्रतीक है। अब इसी धरती की संतानें बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए कमर कस चुकी है। सोनार बांग्ला के संकल्प को सच करने के लिए एक विशाल लहर मैं मेरे सामने देख रहा हूं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं और मैं बंगाल में इन दिनों जब भी आता हूं, एक के बाद एक रैली नए रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रही है। भाई और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता के परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आशोल परिवर्तन लाने का महायज्ञ है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की आकांक्षाओं का, नौजवानों के एस्पिरेशंस का है। आज पूर्व बांग्लार एकटाई लक्ष्य सोनार बांग्लार पुनर्निर्माण, बांग्लार गौरव के आबाराव फिरिए आना लक्ष्य। आज सौष्टिक समय चले ऐसे छे যখন আমরা আবার সোনার বাংলা বানাবো। साथियों, 21वीं सदी के बंगाल को एक ऐसी सरकार चाहिए जो लंबे विजन के साथ यहां काम करे। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो अगले 25 साल की प्लानिंग के साथ बंगाल को फिर से एक बार उसके स्वर्णिम काल में वापस ले जाए। लेकिन ममता दीदी के 10 साल का शासन इस बात का गवाह है कि उनके पास इसके लिए न विजन है और न ही इच्छा शक्ति है। किसानों के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक। हेल्थ सेक्टर के लिए दीदी का विजन क्या है? आयुष्मान भारत योजना पर रोक। अर्बन प्लानिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? रेरा कानून को लागू करने पर रोक। हाउसिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम आवास योजना की सुस्त रफ्तार और ऊपर से कटमनी। सेफ वाटर, शुद्ध जल के लिए दीदी का विजन क्या है? हर घर जल मिशन के पैसे जो भारत सरकार ने भेजे हैं, फाइलों में दबाकर बैठ जाना। आप मुझे बताइए, क्या
जो इस विजन के साथ काम कर रहा हो, वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा। दीदी को अब वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। अब बंगाल की जनता और इंतजार नहीं कर सकती। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए बंगाल के लोग आज सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बंगाल के पुनर्जागरण का मार्ग तैयार कर रहे हैं। साथियों, बंगाल के प्रतिभाशाली लोगों ने दुनिया को दिशा दिखाई है, हर क्षेत्र में दिशा दिखाई है। एक जमाने में समुद्री ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र अगर देश का कोई था तो यही क्षेत्र था। वो भी दिन थे जब हावड़ा को इंजीनियरों का गढ़ कहा जाता था। ये संस्थान रिवर्स इंजीनियरिंग के उद्योगों के लिए जाना जाता था। ये वो समय था जब यहां सैकड़ों मेटल कारखाने हुआ करते थे, लेकिन गवर्नेंस की कमी ने, सुशासन की कमी ने ये सब तबाह कर दिया। नतीजा ये कि यहां के बड़े बड़े कल कारखाने इतिहास हो गए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, पीवीसी मोल्डिंग यूनिट्स हो, ऐसे अनेक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। यहां के जूट उद्योग की स्थिति, जरी उद्योग की स्थिति सबसे आप भली भांति परिचित है। साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार। दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार। दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज नए अवसर गंवा रहा है। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबर वेतन का लाभ नहीं मिलता। भर्तियों की लिस्ट पहले तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उस पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगाकर ही
भेजा जाता है। दीदी ने यहां तय कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो कटमनी देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो कटमनी देनी होगी। यहां तक कि किसी को अंतिम संस्कार भी कराना है तो भी कटमनी देनी होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में क्या बंगाल में निवेश बढ़ सकता है? ऐसे माहौल में बिजनेस का माहौल कैसे बनेगा? ऐसे माहौल में नौजवानों से सपने कैसे पूरे होंगे? यहां जो उद्योग बीते 10 साल में फला फूला है वो है वसूली उद्योग, तोलाबाजी उद्योग, तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग। दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बोलकर संविधान का पान करना बंद करिए दीदी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं, वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, ओ दीदी,
केवड़िया के, हावड़ा के, ये लोग आपसे जानना चाहते हैं अम्फान राहत के पैसे कहां गए। जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर दीदी नहीं देती तो भतीजा दे दे। दीदी, आपको अंदाजा नहीं है कि बंगाल के लोग आपको बराबर पहचान गए हैं। बंगाल के लोग आपसे कितना नाराज है, आपको बंगाल के लोगों के गुस्से से अब कोई नहीं बचा सकता। दीदी, कोई नहीं बचा सकता है। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आंख खोल करके पढ़ लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए। ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, बीजेपी बंगाल के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार यहां हावड़ा सहित कोलकाता से सटे इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। मेट्रो सेवा का विस्तार आज तेजी से किया जा रहा है। हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। हल्दिया से बनारस के बीच इनलैंड मोटरवे का विस्तार किया जा रहा है। इनलैंड मोटरवे को सस्ते ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम बनाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उद्योग के लिए, निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी यहां के जूट उद्योग को बल देने की है। यहां जूट मिलों के मजदूर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भाजपा की केंद्र सरकार जूट किसानों से लेकर जूट मजदूरों तक हर एक को मदद पहुंचाने में जुटी है। भाजपा सरकार जूट को सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष तौर पर पैकेजिंग मटेरियल का विकल्प न सिर्फ भारत में
बल्कि ग्लोबली बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की पैकेजिंग 100% जूट में और चीनी की पैकेजिंग 20% जूट में करने को अनिवार्य बनाया है। बीते 6 साल में केंद्र सरकार ने जूट का एमएसपी 85% से अधिक बढ़ाया है। जूट किसानों को बेहद बीज मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने एक विशेष बीज वितरण योजना शुरू की गई है ताकि उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिल सके। भाई और बहनों, दीदी की सरकार ने सिर्फ जूट किसानों और जूट मिलों के साथ ही अन्याय नहीं किया, बल्कि यहां के पान और आलू किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के अभाव में आलू किसानों को बहुत अधिक नुकसान में हर बार अपनी उपज को बेचना पड़ता है। आलू किसानों को तोलाबाजों ने, बिचौलियों ने बर्बाद करके रख दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आलू किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग को, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, दीदी ने बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देश के किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ से अधिक किसान उनके बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए, सुनिए दोस्तों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के खाते में जमा किए। लेकिन बंगाल के एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला। क्यों? दीदी को किसानों से दुश्मनी लगती है। अब बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देने का काम शुरू किया जाएगा। बंगाल के हर किसान के बैंक खाते में सीधे, कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बंगाल के किसान के बैंक खाते में सीधे 18,000 रुपये हर एक किसान के खाते में जमा किए जाएंगे। 18,000 रुपये। इसी तरह एक विशेष योजना चलाकर हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी भाजपा की बंगाल सरकार में सीधे पैसे ट्रांसफर की योजना है। भाई और बहनों, बंगाल के लिए हमारा सपना बहुत बड़ा है। बंगाल के लिए हमारा संकल्प भी बहुत बड़ा है। ये हम सभी मिलकर के पूरा करेंगे और इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप,
2 मई के बाद यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी और आप देख लेना भाईपुर विंडो बंद होबे भाईपुर विंडो बंद होबे निवेशर विंडो खुलबे निवेशर विंडो खुलबे शिल्पर विंडो खुलबे आपनारा भय पाबे ना आपनारा भय पाबे ना आपनारा निश्चिंते भोट दिन आपनारा निश्चिते भोट दिन आप सभी का भारी संख्या में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, सारे तोलाबाजों को पता चल जाए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। আমাদের প্রার্থীদের সামনে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা চাইছে। আপনারা আমাদের আজকের এই ঐতিহাসিক জনসভা